Hello, students. Welcome to Forensics. And before we begin with the actual program, I would just like to mention that our syllabus is mostly focused on the NFSU syllabus, and we will be covering every single topic that has been mentioned in that. The first unit is Introduction to Forensic Science, whereas in हम डायरेक्टली फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन पे जंप नहीं करेंगे. पहले वी विल जस्ट डिस्कस स्मॉल definitions and little terms that you must know. So, yeah, let's just begin with it. So, let's begin with our first lecture, which is crime and its classification. So, what's the first thing that comes into your mind when you think of crime? Rape, murder, burglary, and much more. But what exactly is crime and how do you actually define it? And does all of these crime fall under similar classification? Well, we will cover it later on in the chapter. So stay together till the end. Let's just find out. Yeah. What do you see in this picture? I want you guys to think and just tell me, what do you see in this picture? You have 5 seconds. One, two, three, 4, and 5. Yeah. Anyone who said you see a crime scene is right, because just look at the picture. You see policemen, you see a piece of cloth, you also see a chair, and most importantly, you see this yellow tape. This yellow tape. Yeah, this yellow tape. Movies और CIDs में सबने देखी होगी. This yellow tape is usually used to seal the crime scene. Seal the crime scene. But still, one question: how do you actually define a crime scene? What is a crime scene? What is a crime scene? Okay. Before that, you also need to know, what is a crime? Can anything be termed as a crime? मतलब किसी भी चीज को ऐसे ही आलतू फालतू में तुम लोग क्राइम बोल दोगे? Well, no. So let's just see what's the definition of crime. Now, number one, there are 3 points, 1, 2, and 3, that you should keep in mind while defining a crime. A crime is any act that is prohibited by the law. मतलब कि as per the law issued by the government, it is prohibited. मना है. ठीक है? Then a crime is something that is committed by someone. अब हवा में तो क्राइम हो नहीं रहा है. Of course you will have someone जो क्राइम को कमिट कर रहा है. तो yes, there will be a person जो क्राइम को कमिट कर रहा है. Now there should be a punishment for that act in the law. Punishment in the law. This is P. ठीक है? Punishment in the law. Now, so how do you will define it? Let's just write down a definition. Crime scene is any place where the offense or crime has been committed. Now, इसमें इस डेफिनेशन में भी you will see एक झोल है. Now, yes, crime scene is any place where the crime has been committed, but suppose करो
क्राइम ए साइट पर हुआ है एंड उससे रिलेटेड एविडेंस आपको बी साइट पर मिले हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक ड्राउनिंग बॉडी मिली है, ड्राउनिंग बॉडी एक लेट्स से लेक में, ठीक है। बट देयर इज ऑल्सो अ प्लेस लेट्स से बी जहाँ पर आपको इसी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, बॉडी पार्ट्स और से क्लोथ्स, ठीक है, वो मिले हैं। नाउ क्या हम बी को क्राइम सीन बोलेंगे या हम ए को क्राइम सीन बोलेंगे? टेल मी, इज बी अ क्राइम सीन और इज ए अ क्राइम सीन? वेल, let's simplify it now. B is or might be the primary crime scene, whereas A might be a secondary crime scene. Okay, इस बारे में we will discuss further in the upcoming chapters in detail, so don't worry about that. Now, crime scene is any place where the offense or crime has been committed, but it can also be a place where the evidence related to crime has been found. So, this is your definition of a crime scene. Any place where offense or crime has been committed or where the evidence related to crime has been found. Okay, clear? Now, let's move further. Classification of crime. Now, crime has been divided into multiple subcategories and एक एक को हम बिल्कुल easy language में डिस्कस करेंगे आगे जाके. So let's just begin with seriousness. कोई क्राइम कितना सीरियस है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे यू कैन डिवाइड इट इनटू टू. वन इज felonies, okay, and second is misdemeanors, ठीक है. Now, felony. What is a felony? Felony is a serious crime, whereas misdemeanor is a less serious or unserious crime. Now, felonies में जो भी इसके अंडर क्राइम्स आएंगे, they will have more than 1 year of imprisonment, whereas under this category you will see the crimes have less than 1 year punishment. या फिर यहाँ पर तुम फाइन देके या फिर पेनल्टी भरकर भी उस केस को निकाल सकते हो, ठीक है, पेनल्टी. मूविंग ऑन, एग्जाम्पल्स देखते हैं इन केसेस के. अब felony में आते हैं, तुमने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, रेप कर दिया. देन यू हैव आर्म्ड रॉबरी, यू नो, बैंक लूटने जाते हैं गन वन लेके, दैट इज आर्म्ड रॉबरी. मिसोडिमिनीज में यू विल सी नॉर्मल ट्रेसपासिंग कर दी तुमने, ठीक है, रेलवे ट्रैक से दूसरे ट्रैक चले गए ऐसे कूद के. देन यू हैव वैंडलिज्म, दुकान में तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है, वैंडलिज्म. देन शॉपलिफ्टिंग, यू मस्ट हैव सीन दो सीसीटीवी वीडियोस. उसमें औरतें या फिर कुछ भी आदमी सामान लूट के भाग जाता है ज्वेलरी की शॉप से, दैट इज शॉपलिफ्टिंग, ठीक है. उसमें कुछ ज़्यादा सीरियस पनिशमेंट नहीं मिलती है, so that comes under misogynist. इसमें एक और चीज़ है, अंडर felonies you can also get death penalty, ठीक है, death penalty. Any doubts? If you have any doubt, you can just comment below and we will clear that. So these are two on the basis of seriousness. Moving on, nature of act. Now, nature of act में you will see if whether
कि जो क्राइम है वो किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट हु। तो इसमें यू विल सी नंबर 1 पे, इफ अगेंस्ट, इज इट अगेंस्ट अ पर्सन, इज इट अगेंस्ट स्टेट, is it against property, then you have public order और साइबर क्राइम। ठीक है, इनके मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ। अब जैसे किसी एक आदमी को मार रहे हो तुम, मर्डर, ऑफ कोर्स देयर विल बी समवन दैट विल बी किल्ड एंड दैट विल बी अ पर्सन, दैट्स मर्डर, रेप, एनी सॉल्ट ऑफ असोल्ट। ठीक है, देन स्टेट में आ जाता है सेडिशन और ट्रेजन। अब व्हाट इज सेडिशन? सेडिशन इज जैसे प्रोटेस्ट। अब सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, दैट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ओके, दैट वॉन्ट बी काउंटेड अंडर सेडिशन। बट देर आर प्रोटेस्ट जहाँ पे लोग बिल्कुल ही स्टेट के खिलाफ भड़का देते हैं, लोगों को मारपीट होती है, पूरा मतलब बहुत गंदे तरीके से पीपल रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। देन यू हैव ट्रेजन। ट्रेजन में when someone betrays the country, okay, betrays the country। प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी सबको पता ही होगा, प्रॉपर्टी में क्या क्या ही होता है, ट्रेसपासिंग हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, देन यू हैव आर्सन केस। ठीक है, आग लगा दी घर में किसी ने, देन यू हैव बर्गलरी, चोरी करके भाग गए। ठीक है, इट्स लाइक थेफ्ट, ग्रुप थेफ्ट। देन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर में ये जो लोग पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, पीसफुलनेस ऑफ द, जो भी पीसफुल इन्वायरमेंट होता है सोसाइटी में या फिर कंट्री में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो दैट्स पब्लिक ऑर्डर, दैट्स रायोट्स। ठीक है, रायोट्स इंडिया में सबको पता ही होगा क्या होता है। देन यू हैव साइबर क्राइम। नाउ साइबर क्राइम में भी मल्टीपल टाइप्स के क्राइम होते हैं, लाइक फिशिंग, हैकिंग, दिस ऑल्सो trafficking of drugs and humans done online, so that also comes under cyber crime। ठीक है, moving on, mens ray। Now this is a new term for you guys and this is very important। Mens ray means mental element। Now what does mental element means? Let's just think, you go in a classroom। ठीक है, वहाँ पर कोई एक ऐसे ही बुली है एंड ही बुलीज यू, और तुमने गुस्से में आके उसके कंपास मार दिया या सीजर मार दी। नाउ एट दैट मोमेंट was it intentional, was it due to negligence, or it was just like in the moment, it just happened? बेसिकली कॉज क्या था उस एक्ट के पीछे का। ठीक है, लेट्स जस्ट सी सम एग्जांपल्स। इंटेंशनल, आई जस्ट, मतलब कोई जानबूझ के पूरा प्लान कर रहा है मर्डर और उसको मार रहा है, दैट्स इंटेंशनल। ठीक है, मर्डर, मर्डर इज इंटेंशनल। नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के तो अपनी गाड़ी नहीं ठोकता है किसी में। ठीक है, दैट्स एक्सीडेंट। देन यू हैव स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। वन इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है कि इसमें ना द गवर्नमेंट नोज कि समवन इज एट फॉल्ट एंड उनको बार बार उस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मुंबई में केस आया था रुस्तम का, रुस्तम आइसक्रीम, जिसमें दे फाउंड लैक ऑफ हाइजीन। ठीक है, लैक ऑफ हाइजीन, क्योंकि एफएसएसए आई थी, एफएसएसए ने रेड मारी थी, तो उनमें हाइजीन के वो क्राइटेरियाज मैच नहीं कर रहे थे एंड देयर वाज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ
नहीं, एडल्ट्रेशन नहीं थी उसमें, बट एडल्ट्रेशन केसेस ऑल्सो कम अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज. ठीक है. ऑल्सो देर इज वन मोर टर्म इस पे दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एक्टिस. That's, wait, I will just tell you what is that. Yeah, actus rea. I was right. It's actus rea. Moving on. बेलेबिलिटी. सिंपल है. इसकी सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन हो सकती है. या तो कोई क्राइम बेलेबल होगा, या तो कोई क्राइम नॉन बेलेबल होगा. नॉन बेलेबल. ठीक है. अब इसमें भी बेलेबल में ना, द पर्सन हैज राइट्स. द पर्सन हैज राइट. ठीक है. कि वो एक, ये क्या बोलते हैं, वकील, लॉयर, लॉयर को हायर कर सकता है एंड ही कैन गेट अ बेल. क्योंकि जो तो क्राइम है वो लेस सीरियस है. ठीक है. द क्राइम इज लेस सीरियस. बट इन नॉन बेलेबल, द कोर्ट होल्ड्स द डिसीजन. द कोर्ट होल्ड्स द डिसीजन. और उनके बगैर आपको बेल नहीं मिल सकती. यू विल हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. ठीक है. एग्जाम्पल, अगेन यू कैन मर्डर, असोल्ट, ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंस है. ठीक है. मूविंग ऑन, कंपाउंडेबिलिटी. नाउ इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस इज, यहाँ पर कंपाउंड पैसों से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट मनी. कंपाउंड हेयर रेफर्स टू, okay, no, wait, that was a different one. That was a different one. That was capital. No, sorry guys. चल जाना भाई, क्या हो गया. ओके. नाउ कंपाउंडेबिलिटी को आप ऐसे याद कर सकते हैं. कंपाउंड इज रिलेटेड टू मनी. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा होगा, तो रिलेटेड टू मनी. इसमें भी यू हैव टू सब कैटेगरीज. नंबर वन इज कंपाउंडेबल. नंबर टू इज नॉन कंपाउंडेबल. एज द नेम सजेस्ट, कंपाउंडेबल में आप कोर्ट से बाहर अपनी पार्टीज के साथ सेटलमेंट कर सकते हो. आपके कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होंगे. ठीक है. नो ट्रायल एंड यू कैन गेट सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डिफेमेशन का केस है. किसी ने आपका नाम खराब कर दिया और आपको पता है कि आपका नाम किसने खराब किया है, तो आप उसे आपस में बातचीत कर लो, थोड़े बहुत पैसे वैसे मार लो उस पर. ठीक है. हो जाएगा कंपाउंडेबल. पर नॉन कंपाउंडेबल में भाई प्रोसिक्यूशन इंपॉर्टेंट है. प्रोसिक्यूशन इज नेसेसरी. उसमें नो प्राइवेट सेटलमेंट भाई. कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई इसमें. तो कोई प्राइवेट सेटलमेंट नहीं हो सकती है आपकी. भूल जाओ, भूल जाओ पैसे वैसे, आप लेन देन नहीं होगी आपकी. ठीक है. देन यू हैव जुरिडिक्शन. जुरिडिक्शन और ट्रायलिबिलिटी. ट्रायलिबिलिटी. ठीक है. जुरिडिक्शन और ट्रायबिलिटी. अब इसमें देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसमें ना दो तरीके के केसेस होते हैं. अरे ये क्या हो गया, वेट, सॉरी. ट्रायबिलिटी. एंड इसमें दो तरीके के केसेस होते हैं. नंबर वन इज summons case, then you have a warrants case. One thing that you need to understand here is
जो सम्मन्स केस है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ सम्मन इज, एंड वारंट्स केस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ वारंट इज. दिस I have discussed in one of my shorts, so you can find it there. ठीक है. बट कुछ नहीं, वहीं पे जाके देखना यार, सॉरी, बट आई विल जस्ट टेल यू लेट इट बी. सम्मन ना एक लीगल डॉक्यूमेंट है. सम्मन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है. जो ये बोलता है कि मतलब जिसके भी नाम पे सम्मन आता है, दैट पर्सन हैज टू बी प्रेजेंट इन द court on the following dates which are mentioned in that document. So summon is a legal document, whereas a summon case means it is a नंबर वन लेस सीरियस क्राइम. ठीक है. लेस सीरियस क्राइम है. पनिशमेंट भी उसको 1 साल से कम ही मिलेगी, लाइक 1-2 साल से कम. मैक्स 2 years, सॉरी इट्स लेस देन 1 year एंड मैक्स 2 years. इसमें भी आप लोग ये सिंपल ट्रायल्स रहते हैं और इसमें नो अरेस्ट. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू फॉर दिस केसेस. ठीक है. जैसे कि आप वही डिफेमेशन कर दी, पब्लिक में हाथापाई मार दी, पीस खराब कर दिया सोसाइटी का, तो वो सम्मन में आ जाएंगे. देन देयर इज अ वारंट केस. वारंट केस में क्या है, इट इज अ सीरियस क्राइम और इसमें आपको 2 साल से ऊपर की सजा मिलेगी. मोर देन 2 year ऑफ पनिशमेंट मिलेगी आपको. ठीक है. जेल की चक्की तो पीसनी पड़ेगी. अरेस्ट तो होगा बेटा इसमें. ठीक है. देन एक चार्जशीट भी बढ़िया वाली फाइल होगी, पूरी अच्छी खासी लंबी चौड़ी डिटेल के साथ. देन व्हाट इज अ वारंट, ये भी आप समझ लो. वारंट इज अ लीगल अथॉरिटी. वारंट इज अ लीगल अथॉरिटी जो पुलिस पर्सनल्स को दी जाती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए. इसके एग्जाम्पल मर्डर, थेफ्ट, ट्रैफिकिंग और असॉल्ट. ठीक है. देन वी विल सी ऑर्गेनाइजेशन. ये तो इजी है भाई. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या तो क्राइम ऑर्गेनाइज्ड होगा कि आप पूरे प्लान के साथ जाओ और घर में लूटा पाई कर दो, या फिर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड होगा. अब इसका एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल देखो. ऑर्गेनाइज्ड में सपोज करो आपको पता है, ठीक है, ये क्राइम सिंडिकेट्स वगैरह रन करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया ऐसे शूटर्स को हायर करते हैं. शूटर्स हायर्ड. ठीक है. बढ़िया आपने शूटर वूटर हायर किया, एक बंदे को मारना है, आपको अपना बदला लेना है, तो आप उसको बढ़िया पैसे वैसे दिए और आप बोल दो कि इस बंदे को इस टाइम पे आप मार दो. आप पूरा उसका ट्रैक करते हो, ट्रैक शेड्यूल. ठीक है. देन यू हायर शूटर्स एंड देन द पर्सन इज शूट डेड, मर गया. दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑल्सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कैन बी लाइक बैंक रॉबरी. ठीक है. बैंक रॉबरी कर दी तो इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. अनऑर्गेनाइज्ड में पागल लोग होते हैं, इनको पता ही नहीं है क्या करना है, बस ऑन द मोमेंट, एट द मोमेंट बस लड़ लो. कुछ भी करते हैं बिना दिमाग के. ठीक है. कुछ काम नहीं है इनका. सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन. चलना भाई ऊपर, क्या हो गया. प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट. अब प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट में आपको एक चीज समझनी है. दिस इज बेस्ड ऑन अ वर्ड विच इज कैपिटल. नाउ कैपिटल here does not mean sum or money. No. ठीक है. No. Capital here means death. Capital here means death. So it is also described in two. One is capital, then non-capital. ठीक है. कैपिटल में क्या होगा कि द पर्सन विल बी गिवन अ डेथ पेनल्टी. वेरी फेमस केस, अभी सीरीज आई है राख. राख में
Ranga Billa case. Then you have Nirbhaya. Nirbhaya case में also they were hanged till death. ठीक है. नॉन कैपिटल में you won't receive a death penalty. No death penalties. ठीक है. सिर्फ फाइन होगा और इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी. ठीक है. बस और कुछ नहीं होगा इसमें. देन यू हैव सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे वाइट क्राइम की, ब्लू क्राइम की, बेस्ड ऑन द सोसाइटल एस्पेक्ट. सोसाइटी में स्टेटस क्या है लोगों का, अब वो भी क्राइम कर रहे हैं. जिसके पास बहुत पैसा है वो भी क्राइम कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी क्राइम कर रहा है. सब क्राइम कर रहे हैं, सब एक जैसे हैं. वाइट क्राइम, सॉरी वेट गाइस, कलर से लिखेंगे आज हम, बढ़िया वाले. कलर चेंज हो सकते हैं क्या इसमें? सॉरी, ये रहा, इससे होंगे ना. हाँ, क्या है? यस, हाँ अब बढ़िया मजा आएगा. वाइट कॉलर क्राइम एंड देन ब्लू कॉलर क्राइम. और व्हाइट कॉलर क्राइम से आपको क्या पता लगता है? कौन पहनता है व्हाइट कपड़े ज़्यादा? जो बार बार धुला सकता है कपड़ों को, ठीक है, वो पहनेगा. ले इसको हटाओ स्केल को. तो जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल या फिर पीपल हु आर इन हाई पावर्स, कमिटेड बाय पीपल इन पावर. ओके. या फिर कोई बिजनेस में है, तो बहुत पैसा है इनके पास, पैसे वाले, पैसे वाले लोग. ठीक है. और ब्लू क्राइम में पुअर, कि बच्चे इसको अपना सर्वाइवल के लिए कहीं से छोटी मोटी चोरी करनी पड़ गई, तो दैट इज अ ब्लू कलर क्राइम. इट इज डन फॉर पर्सनल गेन्स. ठीक है, पर्सनल गेन्स. छोटी मोटी थेफ्ट कर ली, रॉबरी कर ली. बट इसमें क्या आएगा? बिजनेस फ्रॉड. जो भी घटिए घपलेबाजी होती है ना, वो सब वाइट क्राइम. ठीक है. तो या these were all the classification of crimes that we discussed. ठीक है. and these are only the ones that you should know as of now. नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत लॉ के बारे में. लॉ है क्या एंड हाउ इट वाज फॉर्म, इंपॉर्टेंस क्या है लॉ की एंड एवरीथिंग. एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल फॉरेंसिक साइंस, कि व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्राइम क्या है, क्राइम के अंडर आती क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं. इसमें भी काफ़ी वास्ट है, जैसे थ्योरीज हैं, मल्टीपल थ्योरीज, वो भी आगे जाके आएंगी. बट एज ऑफ नाउ यू मस्ट नो व्हाट इज क्राइम एंड उसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व अ फ्यू MCQs. अब MCQs में there are only 10 MCQs and they might or might not be related to the topic that we have discussed today, but they are important from forensic science point of view. So yes, and last में there is a question for you. So let's begin with the MCQs. Under Indian law, BNSS, which term describes offenses where police can arrest without a warrant? Yes. Is it bailable, compoundable, cognizable or summons case? Well, the answer is firstly compoundable तो नहीं ही होगा. ठीक है. Can arrest without a warrant में bailable भी नहीं है. It is cognizable. ठीक है. It is cognizable. Yes. See, cognizable. Moving on. The term white collar crime was coined by which sociologist? It was Edmund. Yes. Who coined the term white collar crime? Let's see. Yes, Edwin Sutherland. Edwin Sutherland in 1939. Okay.
Let's move. Which Indian law replaced the Indian Penal Code IPC in 2023 and 2024? Sorry, it's A. भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, it's भारतीय न्याय संहिता. Next question is, modus operandi is a Latin term which means it's an important term in forensics. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में. Yes, it means motive of the, sorry, it means method of operation. ठीक है, means method of operation. Then we have who is considered the father of modern criminology and who proposed the theory of born criminal. This is very interesting actually. Born criminal theory is very interesting. मैं बताती हूँ इसके बारे में. ठीक है, इसका आंसर ये है, Cesare Lombroso. What he said was, he gave us the born criminal theory. इसने क्या बोला कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका पता लगाया जा सकता है उनके फिजिकल फीचर्स से. गधे थे क्या? ठीक है. Also, he is also known as father of modern criminology. And also, he is known as father of criminal anthropology. ठीक है, father of criminal anthropology. But this theory was not accepted because there can be multiple reasons someone commits a crime. Might be financial reasons, might be emotional reasons, might be mental reasons, you never know. But physical feature was never the one. तो इसकी theory को reject कर दिया गया. Then we have the term serial killer is widely credited to have been popularized in the 1970s, 80s by yes, Robert Lusler. by Robert Ressler. Now, who was Robert Ressler? He worked in FBI. ठीक है, he worked in FBI and he also founded modern criminal profiling. Modern criminal profiling. Okay, then moving on. Which classification system distinguishes crime based on whether the state alone can prosecute without private settlement? सेटलमेंट आ गई इसमें, आ गई सेटलमेंट. पैसा बढ़ा दे या नहीं बढ़ाए. ठीक है, compoundable versus non-compoundable is your answer. Then we have the term actus reus refers to, this is what I was talking about. The term actus reus refers to, what does it refer to? The guilty act itself. देखो यहाँ पे इसने इसको शूट कर दिया इसने शूट इसको. ठीक है, दिस इज मेंस रे और इसको शूट किया, शूटिंग, ये मर गया. दिस इज एक्टिस रीस. ठीक है, द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सेंट्रल टू इंडियाज फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इज हेडक्वार्टर्ड इन. इसका सबको पता होना चाहिए बिकॉज ये फैक्ट में भी अभी आया था. दिस इज गांधीनगर. सबको पता है इसका, सबको एग्जाम वहाँ पे एडमिशन चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, थेफ्ट, burglary and arson fall under which category of crime? Tell me. Against person, property, state or white collar? Very easy, very easy. आर्सन घर में होगा, burglary घर में होगी, theft घर में होगा, property, it's crime against property. Now, these were all the questions that we discussed today. I know they were not related to the topic, but these are something that you should know. अगले वीडियो में we will study what law is. ठीक है, then some important terms that are often confusing. ठीक है, in forensic science we will study about that. And for today's homework, you guys need to tell me who was Aziz ul Haq.
and what was his contribution in forensic science. Let me give you a heads up. Azizul Haq with Aim Chandra Bose, ठीक है, with Aim Chandra Bose walked in FP department. Now FP is fingerprint department. But उसने क्या किया, ठीक है? I need you guys to tell me in the work. What work did he do in FP? Okay. So yeah, that was all for today. And if you guys like the lecture, please hit the like button, subscribe to the channel, comment below, and let me just know how I could improve it and make it even more better for you guys. Yeah, that's all. Till then, stay happy, stay healthy, and keep working hard. Bye bye.